Welcome back to the channel of Chem Pacific. In this video, I'm going to discuss with you a very important topic, that is the FLUXIONAL molecule from the chapter Organometallics. But before we get started, if you're new to our channel, don't forget to subscribe our channel and press the bell icon. And also, if you like our video, to press the like button. Now, let's get started. Now, about the FLUXIONAL molecule, I would like to inform you that this is very important topic. बहुत अच्छे से समझना है आपको इस चीज को. यहाँ पे I have already mentioned that it is about a molecule that undergoes alternate and very rapid rearrangement of its atoms, and which has a specific structure for a very short period of time. Every single word is very important if you want to make it understand. तो बेसिकली ये है कि रैपिड रीअरेंजमेंट होता है. तो इस टाइप ऑफ रैपिड रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स आपने पहले भी कहीं पे पढ़ाई किया है. आई होप यू रिमेंबर दैट इन द केस ऑफ टॉटोमरिज्म, कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म, वहाँ पे हमने पढ़ाई किया था. ड्यू टू द रैपिड रीअरेंजमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे कीटोइनॉल ग्रुप में इंटरचेंज हो सकता है. बट यहाँ पे एक स्पेसिफिक डिफरेंस है. Due to that, in the case of tautomerism, कीटोइनॉल में जब कन्वर्शन इंटरकन्वर्शन होता है, वहाँ पे there is difference in chemical property of the species. But in this case of FLUXIONAL molecules, यहाँ पे no chemical change with the rapid rearrangement होता है. I repeat, no chemical change takes place. There should be no chemical change. This is a very important one after the rapid rearrangement. Okay, after rapid rearrangement. Next, basically ये है क्या? This is the polytopic rearrangement, but basically ये है क्या? I have given a very beautiful diagram in front of you. आप बहुत अच्छे से अगर इसे स्टडी करते हो, आप बहुत अच्छे से एक चीज देखोगे. So you find this is a TPP structure, and यहाँ पे आप देखोगे that यहाँ पर भी रैपिड इंटरचेंज ऑफ द फ्लोरीन एटम्स होते हैं. ठीक है, यहाँ पे द F1 and F3, they are rather all the fluorine atoms, they are interchanging, rapidly interchanging among themselves. अगर कोई भी चीज कहीं पे हो रहा है, डेफिनेटली उसका कोई तो प्रूफ होगा. तो in the F19 spectroscopy, it has been observed. Point number 1, at room temperature and nearly high temperature, वहाँ पे हमने देखा है that we are actually getting only one peak of F19 spectroscopy, and after lowering the temperature बहुत कम होते होते, for example अगर 0 Kelvin में आप लेके जाते हो, instead of one, this one peak actually splits into 2 peak. So at lower temperature, at 0 Kelvin, you are getting 2 peak, and at high temperature, at room temperature, you are getting 1 peak. And the question arises, why is it so? So before we proceed, एक छोटा सा हमें information, I know that आप सबको ये चीज़ पता है, but थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसके बारे में और enlighten करना चाहती हूँ about the TPP structure. So in the case of the TPP structure, you all must be knowing there are two types of bond, है ना? So in the case of the TPP structures, there are mainly two types of bond. One is the axial bond, and the other is the equatorial bond. Okay, now basically these two axial bond and equatorial bond जो है, even they are all, in this case, all of them are having the PF bond, but all of them are not equal in length. And why is it so? अलग अलग क्यों होता है? It has been found the bond length of the axial bond is longer as compared to the equatorial bond. In this case, the bond length is shorter. There are two reasons mainly. Point number 1, if you follow the Benz rule, in the case of the Benz rule, what happens? It is said that since this is a TPP structure, that is why it is sp3 dehybridization, which is supposed to be splitted into two. You have the sp2 and the dp, which is actually a combination of two properties, sp2 and the dp. Now this equatorial bond is actually sp2, because this is planar, trigonal planar, and this is the dp hybridized. Now in the case of the equatorial bond, which is the sp2 hybridized, it is containing s character, which is having more s character. As a result of this s character, यहाँ पे क्या हो जाता है,
the bond becomes shorter. And in this case the axial bond is devoid of the s character, and that is why यहाँ पे the bond is longer. ये एक reason है. Another reason जो है वो है, आप जानते हो that about the bond pair repulsion. In this case the axial bonds जो है these axial bonds, they are actually at 90 degree apart. It is having 3 bond pair repulsions. ठीक है, देखो, you can actually see that it is actually experiencing 3 bond pair repulsion at a 90 degree apart from each other. These are the 3 bond pair repulsion. ठीक है, so in order to overcome this repulsion क्या हो जाता है, it wants to go away from this. So इसकी वजह से ये इससे दूर जाना चाहते हैं, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाता है. मतलब अगर आपके साथ किसी का झगड़ा हो रहा है, रिपल्सिव नेचर हो रहा है, तो आप उससे दूर जाके शांति पाना चाहते हो. दैट इज व्हाई यहाँ पे भी जो एक्सियल फ्लोरीन एटम है, ये भी इट इज एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग bond pair repulsion with the 3 fluorine atoms at a 90 degree apart from each other. So in order to overcome the repulsion, it wants to go away from this. As a result of the bond length increases. तो basically हमें ये समझ में आ गया, ये जो axial bond है, this is longer as compared to the equatorial bond. I hope this is clear to you. So these bonds are longer. मतलब these 2 fluorine atoms are different from each other. लेकिन जब temperature increase हो जाता है, there is rapid interchange between all the fluorine atoms. ठीक है, as a result of which what happens, as if क्या होता है, ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपिकल स्केल है, ये फ्लोरीन एटम्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते ना. यहाँ पर भी बहुत अच्छे से आप लोगों को इस बात को समझना है, इसका मतलब क्या है. बेसिकली बहुत इजीली मैं आपको इसका मतलब समझा देती हूँ. दैट इज, अगर आपके रूम में एक फैन को ऑन करते हो एट अ फुल स्पीड, ठीक है, तो फैन विल एक्चुअली जब वो ऑन हो जाता है तो फुल स्पीड, आप फैन का जो 3 ब्लेड्स है उसका आपका आंखों से आप उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो. क्यों? बिकॉज आपका आंखों का जो टाइम स्केल है और फैन का जो स्पीड है, दोनों मैच नहीं हो रहा है. फैन का स्पीड इज फार मोर देन the speed of your light and the time scale of your eyes. ठीक है, इसलिए वो मैच नहीं करता है. आपको लग रहा है कि कितने नंबर ऑफ ब्लेड से आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो, आपको सारे के सारे इक्विवेलेंट ही लगता है. बट वंस यू स्विच ऑफ द फैन एंड वंस इट गेट्स स्लोड डाउन, तो आप धीरे धीरे देख सकते हो इसका मूवमेंट कम हो जाते हैं, और फिर आपके आंखों के टाइम स्केल के साथ और जो ब्लेड है ऑफ द फैन, वो दोनों मैच हो जाते हैं, और फिर आप कैपेबल हो जाते हो और डिस्टिंग्विश करने में दैट देयर आर 3 ब्लेड्स ऑफ द फैन. एग्जैक्टली यही होता है जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जो टाइम स्केल होता है एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, जब बहुत रैपिड रीअरेंजमेंट हो जाता है, उसका टाइम स्केल उसके साथ मैच नहीं कर पाते हैं, और उसे लगता है कि सारे फ्लोरीन एटम्स इक्विवेलेंट है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच एट हाई टेम्परेचर विच इज द रूम टेम्परेचर, उस टाइम वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, और उस टाइम ड्यू टू द रैपिड इंटरचेंज ऑफ ऑल द फ्लोरीन एटम, इट गेट्स अ सिंगल पीक. I hope I can make you understand. This is very interesting. लेकिन जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर रिड्यूस होते होते 0 केल्विन में पहुंच जाते हैं, तब उसका जो रैपिड इंटेज है काफी रिजिड हो जाता है. एट दिस टेम्परेचर इट टर्न्स आउट टू बी वेरी रिजिड. और तब क्या होता है, तब आप जो डिफरेंट फ्लोरीन एटम्स है, दैट इज द एक्सियल एंड इक्वेटोरियल फ्लोरीन एटम्स. सो देयर आर 2 नॉन इक्विवेलेंट एटम्स, 2 एक्सियल एंड 3 इक्वेटोरियल, है ना. सो देयर आर एक्चुअली 3 equatorial fluorine atoms है, and you are having 2 axial fluorine atoms. As a result of which you are getting 2 peaks, one for the equatorial fluorine atoms and the other for the axial fluorine atoms. That is why at extremely low temperature 0 Kelvin, it actually gets split into 2 peaks. I hope I can make you understand. So basically यहाँ पे rapid interchange of all the atoms होते हैं, बट आपको ये कब एक ही जैसे दिखेंगे, जब जो नॉन इक्विवेलेंट एटम्स है वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करते हैं. आई होप आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये PF5 में पेंटागन PF5 फॉस्फोरस PF5 में हमने इसे किया है. तो उसके बाद
नॉट ओनली ये PF5 में होता है, दिस इज ब्यूटिफुली गिवन। ये PF5 के साथ अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में भी ये चीज़ देखा जाता है, FeCO5 में भी ये देखा जाता है। तो अगर आप थ्योरीज पढ़ाई करते हो तो आप इतने स्ट्रॉन्ग बन जाते हो, तो आप देखेंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई ब्यूटिफुली एक्सप्लेन दिस दैट कोई भी मॉलिक्यूल जो है, कोई भी मॉलिक्यूल एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में स्ट्रिक्टली रिजिड नहीं होता है ड्यू टू इंटरएटॉमिक वाइब्रेशंस। ठीक है, सो सम मेटल्स जहाँ पे सम मेटल कार्बोनिल्स FeCO5 इस टाइप ऑफ मेटल कार्बोनिल्स जो होता है, और सम मेन ग्रुप कंपाउंड्स लाइक PF5 या अदर कोई ऑर्गेनोमेटल, इसमें डिफॉर्मेशनल अरेंजमेंट होता है ड्यू टू द रैपिड इंटरचेंज ऑफ द प्लेस ऑफ वन अनदर, और उसे हम बोलते हैं फ्लक्सियनल मॉलिक्यूल एट हाई टेम्परेचर, एंड इट एग्जिबिट्स फ्लक्सियनल बिहेवियर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ना यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, द डिफरेंस बिटवीन द फ्लक्सियनल मॉलिक्यूल and exhibiting the fluxional behavior. Fluxional behavior exhibit और fluxional molecule में क्या difference है, ये भी बहुत अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, so let me recapitulate once again. तो fluxional molecules वो होते हैं that जिसके क्या होता है कि at different temperatures क्या होता है, जब temperatures high हो जाता है, there is rapid interchange of the atoms. As a result of which क्या होता है, जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसका टाइम स्केल उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है, और उसे लगता है एज इफ ऑल द लिगेंड्स आर इक्विवेलेंट। दैट इज व्हाई इट एक्चुअली रिजल्ट्स इन वन पीक। जैसे धीरे धीरे आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाते हो, इसका जो इंटरचेंज ऑफ द एटम्स है ये काफी कम हो जाता है। As a result of which वो जो नॉन इक्विवेलेंट एटम्स है उसे डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, और जितने नॉन इक्विवेलेंट एटम्स है उतना पीक्स में ये स्प्लिटेड हो जाते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से समझाया। देखो, जो भी हम थ्योरीज आपको पढ़ाएंगे, आप अच्छे से थ्योरीज करो, फिर प्रॉब्लम्स आप खुद कर पाओगे, मुझे इतना करने की जरूरत नहीं पड़ता है। सी यहाँ पे एक क्वेश्चन है विच इज अ क्वेश्चन विच एक्चुअली केम इन CSIR-NET जून 2016। यहाँ पे वही दिया है जो मैंने अभी डिस्कस किया। FeCO5 ऐसा एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे फ्लक्सियनल मॉलिक्यूल्स, तो बेसिकली फ्लक्सियनल मॉलिक्यूल्स मैं स्टेप बाय स्टेप धीरे से पढ़ाती हूँ so that you can remember easily. Fluxional molecules are those जिसका all ligands are equivalent. Very important. जिसका all ligands appear equivalent at any or all temperature. At any temperature. तो फ्लक्सियनल मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसके सारे लिगेंड्स इक्विवेलेंट होते हैं एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, नाउ क्या होता है कि अगर उसके सारे लिगेंड्स कब इन दिस काइंड ऑफ ये सारे लिगेंड्स कब इक्विवेलेंट होता है, सारे लिगेंड्स इक्विवेलेंट होते हैं जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाते हैं, है ना। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस द लिगेंड्स दे इंटरचेंज अमंग इटसेल्फ। बट सारे लिगेंड्स इक्विवेलेंट कब दिखेंगे, लिगेंड्स तब इक्विवेलेंट दिखेंगे जब नॉन इक्विवेलेंट लिगेंड दे इंटरचेंज अमंग देमसेल्व्स। वेरी इंपॉर्टेंट। और दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो। यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट लिगेंड्स कौन कौन सा है, द एक्सियल वन एंड द इक्वेटोरियल वन। when these two interchange among themselves you get the fluxional molecule जहाँ सारे लिगेंड्स इक्विवेलेंट दिखते हैं। वैसे सारे लिगेंड्स ही एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि नंबर 5 एंड नंबर 4 अगर ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करेंगे तो आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेंगे बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इक्विवेलेंट। लेकिन ये मॉलिक्यूल फ्लक्सियनल मॉलिक्यूल में तब कन्वर्टेड होता है जब द नॉन इक्विवेलेंट एटम्स इंटरचेंज अमंग देमसेल्व्स, एंड फ्लक्सियन में सारे लिगेंड एक ही जैसे दिखते हैं। आई होप आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे फ्लक्सियनल मॉलिक्यूल तब भी होगा जब द नॉन इक्विवेलेंट atoms, so the groups of atoms, they interchange among themselves। यहाँ पर non equivalent होता है axial and the equatorial atoms, they interchange among themselves। ठीक है, वो कौन कौन है, like 2 and 5 and also 3 and 4। ठीक है, जब axial and equatorial ligands they
इंटरचेंज अमंग देमसेल्व्स, देन क्या हो जाता है, सारे लिगेंड्स एक ही जैसे दिखता है। वो कब होता है, एट हाई टेम्परेचर। क्लियर? आई होप आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। सो फ्लक्सुअनल मॉलिक्यूल दो जहाँ पे सारे लिगेंड्स इक्विवेलेंट होते हैं। नाउ अनदर क्वेश्चन, तो मैंने आपको बताया कि ऐसे स्ट्रक्चर जो फ्लक्सुअनल बिहेवियर, नाउ मैंने आपको बताया फ्लक्सुअनल मॉलिक्यूल कौन होता है, जिसके सारे लिगेंड्स इक्विवेलेंट होते हैं। ना अब मैं आपको बताऊंगी फ्लक्सुअनल और एग्जिबिटिंग फ्लक्सुअनल बिहेवियर का मतलब क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। ऐसा मॉलिक्यूल जो डिफरेंट पीक्स देते हैं ड्यू टू इट्स डिफरेंट स्ट्रक्चर at different temperature. Very important. There's a very thin line difference between the fluxional molecule and the exhibiting fluxional behavior. Fluxional behavior वही exhibit करते हैं जो different peaks देते हैं at different temperature. ठीक है? So वही होंगे जहां पे नॉन इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स होना चाहिए या बॉन्ड्स डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिसका सारे के सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं, तो वहां पे अगर आप चेंज भी करते हो, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ऑल ऑक्टाहेड्रल क्या है, सारे के सारे, इन द केस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्या होता है, ऑल द बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। सो अगर उसमें रैपिड इंटरचेंज भी होता है फिर भी कोई डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन हमें ऐसे स्ट्रक्चर चाहिए जहां पे आपका द बॉन्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड यू हैव सम नॉन इक्विवेलेंट लिगैंड्स और ग्रुप ऑफ लिगैंड्स। सो वहां पे कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो कि एसिमेट्रिक होता है, जो कि सिमेट्रिक होता है, दिस ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, दिस आर सिमेट्रिक ज्योमेट्रीज, दे आर द सिमेट्रिक ज्योमेट्रीज। ठीक है, दे हैव द सिमेट्रिक ज्योमेट्रीज। ठीक है, बट द आंसर इज फ्लक्सुअनल बिहेवियर वही शो करेंगे जो कि एसिमेट्रिकल होता है, इसके ज्योमेट्री में एसिमेट्री रहता है, लाइक पेंटागोनल बाइपिरामिड एंड टीबीपी स्ट्रक्चर जो हमने अभी अभी डिस्कस किया, बिकॉज दे हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स, दैट इज द एक्सियल बॉन्ड एंड द इक्वेटोरियल बॉन्ड. So the answer over here is definitely going to be 2 and 4. I hope I can make you understand. This is very important, student. ठीक है, हर एक चीज बहुत ध्यान से आपको सुनना है. ओके, नाउ यहाँ पे और एक चीज है, I have already made it clear to all of you that there is a thin line difference between the fluxional molecule and the exhibiting fluxional behavior. Fluxional molecules वो होते हैं जिसके सारे लिगेंड सेम होते हैं. हम क्यों बोलते हैं दैट हाई टेम्परेचर में फ्लक्सुअनल मॉलिक्यूल जैसे बिहेव कर रहा है? इसलिए क्योंकि हाई टेम्परेचर में इट अपीयर्स एज इफ ऑल द लिगेंड्स आर इक्विवेलेंट ड्यू टू द रैपिड इंटरचेंज ऑफ द एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स. ठीक है, इसलिए वो फ्लक्सुअनल एज इफ ऑल द लिगेंड्स इक्विवेलेंट. और एग्जिबिटिंग फ्लक्सुअनल बिहेवियर मतलब जो डिफरेंट टेम्परेचर में डिफरेंट पीक्स दिखा, जैसे PF5 का स्ट्रक्चर हमने देखा जो हाई टेम्परेचर में एक पीक दिखा है, लो टेम्परेचर में क्या दिखा है, 2 पीक दिखा है. So that is a exhibiting fluxional behavior. But for example जो octahedral या tetrahedral geometry हमने अभी देखा, तो वो हर कोई टेम्परेचर में आपको एक ही पीक दिखाएंगे. It means they are the fluxional molecules. Clear? Very important. Now the question arises, the ligands or ligand that are fluxional in temperature range. मतलब ये बोल रहा है fluxional in, this is very important. ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, अब नहीं होंगे. तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में वो फ्लक्सुअनल है, नॉट इन ऑल टेम्परेचर. ये स्पेसिफिक टेम्परेचर मैंने डिफाइन क्या किए थे, देखो मैंने जब आपको डेफिनेशन दिए थे मैंने क्या कहा था, दैट ये होता है एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को कहा था. तो फ्लक्सुअनल मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने अभी देखो आपके एग्जाम में ही आया था, जो ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जहां पे सारे जो बॉन्ड्स है दे इक्विवेलेंट टू ईच अदर, सो दे आर द फ्लक्सुअनल मॉलिक्यूल्स. दे आर द फ्लक्सुअनल मॉलिक्यूल इररेस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर. बट अगर स्पेसिफिकली बोल रही हो कि ऐसे जो है जिसका
लिगैंड जो है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर के टाइम ही फ्लक्सोनल है. सो यू मस्ट बी नोइंग दैट इफ आई ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, इफ आई ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, तो यू मस्ट बी नोइंग आपका यहाँ पे eta1 मोड दिया है एंड eta5 मोड दिया है, राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे जो है eta5 में आप जानते हो that all the ligands are similar and equivalent to each other and they show one peak and at 5 ppm, right? But this is the eta5 which is a fluxional molecule just like tetrahedral and octahedral geometries. वो कोई भी टेम्परेचर में fluxional लेंगे, लेकिन ये जो है eta1 it is not fluxional because इसका जो तीन टाइप ऑफ है, दिस इज 1 2 तीन टाइप ऑफ प्रोटॉन्स है. सो इट इज हैविंग 3 नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स. और हाई टेम्परेचर में eta1 मोड में क्या हो जाता है, ये सारे के सारे नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन एक दूसरे के साथ रैपिड इंटरचेंज करने की वजह से इट गिव्स वन पीक. तो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर में क्या हो जाता है, ये जो eta1 है ये हाई टेम्परेचर में दे देते हैं वन पीक. तो इट इज बिहेविंग लाइक अ फ्लक्सोनल molecule, but at low temperature it results in the formation of mainly 3 peaks, sorry, in a ratio 1:2:2. So this eta1, very interesting, this is a fluxional molecule. eta1, it exhibits fluxional behavior and it behaves as a fluxional molecule specifically at high temperature पे, जहाँ पे it is giving one peak because due to rapid interchange of the atoms क्या हो जाता है, it appears that it's all of the ligands are equivalent. तो अगर आपका फ्लक्सोनल एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा eta1. वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैंने क्या कहा, eta1 जो है ये क्या करता है, इट एग्जिबिट्स fluxional behavior. It exhibits fluxional behavior and as a result of which at high temperature it behaves, or at which is the room temperature, it behaves as a fluxional molecule. वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग. तो जब स्पेसिफिकली आपको टेम्परेचर मेंशन किया गया है, मतलब उस टेम्परेचर में उसके सारे लिगैंड्स इक्विवेलेंट दिखते हैं और वो एक पिक देते हैं. दैट इज व्हाई इट इज द eta1 नॉट द eta5. क्योंकि अगर आप eta5 या ऑक्टाहेड्रल बोलते हो या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हो, ये होता है फ्लक्सोनल मॉलिक्यूल्स जिसके सारे लिगैंड सेम होते हैं, कोई भी टेम्परेचर होने दो. But this is a fluxional molecule like tetrahedral geometries and octahedral geometries. But eta1 exhibits fluxional behavior, behaves as a fluxional molecule at a high temperature, that is 298 Kelvin, that is near about 25 degrees Celsius, मतलब at room temperature. ठीक है. I hope I can make you clear, and the rest of the video definitely I'm going to continue in my next videos. It is getting a bit longer, I guess, so I hope I can make you understand. Please go through this. This is very basic and very important. I have discussed with you, and next videos I'm going to bring some more important and interesting examples of fluxional molecules and exhibition of fluxional behavior. Till then, I hope you like my video. Thank you for watching my video. Thank you.